آج ہم آپ کو ایک ظالم رانی کا واقعہ سنائیں گے۔ کیسے اس کے ملک میں جو بھی مسلمان نماز ادا کرتا تو جالم رانی اس انسان کو اٹھا کر شیر کے آرے پھینک دیتی، تو وہ بھوکے شیر اس نمازی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جب جالم رانی نے ایک نیک نوجوان کو اپنے شیر کے آگے پھینکا تو اس شیر نے اس نمازی انسان کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک دکھ بھرا واقعہ۔ دد کا ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک رانی حکومت کیا کرتی تھی۔ اس رانی کا نام سلطانہ تھا۔ رانی بہت ہی ظالم تھی۔ لوگ اس کا نام سنتے ہی لرز جاتے۔ اس کے خوف کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رانی منکر تھی۔ وہ مسلمانوں سے بھی شدید نفرت کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اس نے اس علاقے کے سارے مسلمانوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ سب اس کے غلام بن جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی اس کے سامنے آواز اٹھاتا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا۔ رانی سلطانہ بھوک شیر کے سامنے اس کو پھینک دیتی اور پھر بھوکا شیر اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا تھا۔ یہ سارا منظر وہاں کی ساری رعا اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور کچھ لوگ اس کی غلامی کرنے پر بھی مجبور ہو گئے کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ظلم آہستہ آہستہ اپنی حدوں کو پار کر رہا تھا۔ مظلوم مسلمان بہت بے بس ہو چکے تھے۔ ان کی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھے۔ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ رانی سلطانہ کے سپاہی ہر وقت ان کے پہرے میں رہتے۔ بغداد کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو رانی سلطانہ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ گاؤں اپنی ہی مستی میں مدن تھا۔ اس گاؤں میں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے۔ رانی سلطانہ کو ان کی کوئی خبر نہ تھی، نہ ہی ان کو رانی سلطانہ کی خبر تھی۔ اس خوبصورت گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے، لیکن وہ بہت پکے ایمان والے تھے۔ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اماں فاطمہ رہتی تھی۔ یہ بہت ہی نیک خاتون تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ باعزت زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام سلیمان تھا۔ سلیمان بہت ہی نیک نوجوان تھا، بہت ہی خوبصورت۔ اس گاؤں میں ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہو کیونکہ وہ بہت تہجد گزار تھا۔ وہ اکثر اوقات اس گاؤں میں دین کی تبلیغ کیا کرتا۔ اگر کسی کو اسلام کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو وہ سلیمان کے پاس ہی آتے تھے۔ سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت سے نوازا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتا اور اس کی ماں فاطمہ نے چند بکریاں لا رکھی تھیں۔ اماں فاطمہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے نیاں بکریوں کو کھیتوں میں لے کر چلی جاتیں اور پورا دن وہ بکریاں چرایا کرتیں۔ پھر شام کو بکریاں جو دودھ دیتیں وہ گاؤں میں بیچا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا بیٹا سلیمان، جس نے قرآن مجید کو حفظا اور وہ ایک مسجد میں امامت بھی کیا کرتا تھا۔ سلیمان کا معمول تھا وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں بھی کاٹا کرتا تھا تاکہ اس کی ماں کو پیسے کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی وسیلے سے ان کا رزق چلا رکھا تھا۔ پورے گاؤں میں سلیمان کا چرچا تھا۔ سلیمان ایک نر نوجوان تھا جس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے یہ تاکید کرتی کہ بیٹے، اس جہاں میں صرف اپنے رب سے ڈرنا اور کسی سے نہیں ڈرنا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بال بنگا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس نوجوان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ایک دن ہوا یوں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سلیمان روز کی طرح جنگل میں لکڑیاں تھا کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر وہ تھک چکا تھا۔ گرمی کی شدت سے وہ ایک دنے درخت کی چھاؤ کے نیچے بیٹھ کر کچھ وقت آرام کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے پاس جھاڑیوں میں سے اسے ایک بھیانک سی آواز سنائی دی۔ آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم سے ڈر اٹھا۔ ہائے اللہ، ٹھہر ہو، کوئی جنگلی جانور تو نہیں آگے؟ وہ کہتا ہے کہ آج وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی کلہاڑی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ لیکن وہ جانور جاروں کے پیچھے تھا، لیکن وہ وہیں کھڑ رہا رے، مار مار کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر تو ایسے ہی وہ کھڑا رہا۔ سلیمان کو تیجس ہوا کہ آخر وہ کیا جانور ہے جو وہیں کھڑا دھار مار رہا ہے، باہر نہیں نکل رہا۔ وہ جب جا کر دیکھتا ہے تو باہر ایک شیر کھڑا تھا جس کے پاؤں پر بہت سارے کانٹے چھبے ہوئے تھے۔ وہ اپنا پنجہ اوپر اٹھا کر کھڑا تھا اور درد سے دھڑے مار رہا تھا۔ سلیمان ایک رحم دل نوجوان تھا۔ اس کا دل بہت نرم تھا۔ اسے شیر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دفعہ یہ بھی سوچتا کہ اگر میں نے اس کے یہ کانٹے اس کے پنجے سے نکال دیے
तो कहीं यह मुझ पर हमला ही न कर दे। शेर ने जब सुलेमान को देखा तो अल्लाह का नाम लेकर उस शेर के करीब गया तो शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। न जाने वह शेर भी चाहता था कि वह उसकी मदद करे। हिम्मत थ और बद रख के उसने शेर के पंजे को पकड़ा और वह कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने की देर थी, शेर की जान में जान आ रही। उसी दौरान वह अपना पंजा नीचे रख चुका था। सुलेमान का दिल भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि अल्लाह ही बचाए। अब यह तो अपनी टांगों पर सलामत खड़ा हो गया। इस क्या भरोसा जंगली जानवर है। लेकिन वह शेर जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वह भील रिया उठाकर घर जाने लगा। सुलेमान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह शेर भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत प्यार था क्योंकि सुलेमान ने उसकी मदद की थी और वह उसकी आंखें बता रही थीं कि जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुलेमान तो वहां से चला गया लेकिन शेर उसके पीछे से देखता रहा। घर आया तो उसके घर में लोगों का एक हुजूम था। वह डर गया। खुदा खैर करे, मेरी मां को तो कुछ नहीं हो गया। उसने लकड़ियों के गट्ठर को वहीं फेंका और जल्दी से घर पहुंचा। खैर तो है, आप लोग यहां क्यों आए हैं? अम्मा फातिमा चारपाई पर बैठी थीं और उस गांव की औरतें और कुछ लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ और लोग हैं जो इस गांव के नहीं हैं, वह भी वहां मजने में मौजूद। फिर सुलेमान कहने लगा, क्या हुआ है? हर कोई उसे देखकर कहने लगा, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। इस गांव वाले लोग कहने लगे, ये लोग बहुत मजबूर हैं, डरे हुए हैं, उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने उनको आपके पास भेजा, आप उनकी मदद करें। सुलेमान कहने लगा, हुआ क्या है? एक औरत आई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सुकून खत्म हो गया। हम खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमारा शिकार हो जाता है। भूखे शेर के आगे हमें फेंका जाता है। मेरा शौहर, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं। मैं बेवा हो चुकी हूं। मेरे शौहर को भूख शेर टुकड़े टुकड़े करके खा गए। इसी तरह कुछ और ऐसी औरतें थीं जिनके शौहर और जिनके बाप उन शेरों का शिकार बन चुके थे। सुलेमान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कहने लगा, यह सब कैसे हुआ? वह औरत कहने लगी, क्या आप बेखबर हैं? सुलेमान कहने लगा, वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, बताएं क्या माजरा है, मेरे इल्म में यह बात नहीं है। वह औरत कहने लगी, मेरे बेटे क्या पूछते हो तुम? हम पास ही के इलाके से आए हैं। हमें इस गांव का आज ही पप्पा चला। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है। वह अपने जुर्म की ताब नहीं बैठने देती। हर आए दिन वह जुर्म पर जुर्म करती जा रही है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वह भूखे शेरों की खुराक बन जाता है। वह चाहती है हर कोई उसका गुलाम बन जाए, इस्लाम को छोड़ दे, सिर्फ उसी को सजदा करें। वह अपने गुरूर में अंधी हो चुकी है, कोई उसके सामने नहीं खड़ा हो रहा। सुलेमान यह सुनकर बैठ गया और कहने लगा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों ना बताया? मैं देखता हूं कौन है वह और उसकी इतनी हिम्मत, वह मजलूम लोगों पर इतना जुल्म कर रही है। इस गांव की एक औरत कहने लगी, ना बेटा, न तुम मत जाना। अगर उसको इस गांव की खबर मिल रही तो वह किसी को सही सलामत नहीं छोड़ेगी, फना कर डालेगी। लेकिन सुलेमान के अंदर अल्लाह ताला की ताकत थी। कहने लगा, अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हो? आज तक जब किसी ने आवाज नहीं उठाई तो वह भी भूखे शेर की खुराक बन चुके हैं। अगर मैं आवाज उठा रहा हूं, भूखे शेरों की खुराक बन गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जल्दी से अपना घोड़ा निकाला और रानी सुल्ताना के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान अम्मा फातिमा कहने लगी, बेटा मत जाओ, वह बहुत जालिम है, वह तुम्हें मार देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस जालिम का गुलाम बन जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो, खुदा के लिए उसकी मां रोने लग है। सुलेमान कहने लमा, यह आप क्या कह रही हैं? आप मेरी मां हैं, आप इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आप तो मुझे यकीन के बड़े किस्से सुनाती थी, क्या हुआ? कोई बात नहीं, वह कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। न जाने कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। क्या फायदा हमारा जो हम आवाज ना उठाएं? अल्लाह ने हमें ये हाथ पांव किस लिए दिए? और डर अल्लाह का होना चाहिए। बस जिनके साथ अल्लाह हो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हुआ और सीधा रानी सुल्ताना के महल के पास पहुंच गया। सिपाहियों को कहता है, रानी सुल्ताना से मिलना चाहता हूं। सिपाही रानी सुल्ताना के पास आए। रानी साहबा, कोई सुलेमान है, वह आपसे मिलना चाहता है। रानी कहने लगी, नहीं, मैंने नहीं मिलना, किसी से उसे जाने दो, तुम जाकर कहो उसे रानी इस वक्त आराम कर रही है। रानी बहुत चालाक थी। वह कहने लगी, आखिर कौन होगा जो मुझसे मिलने आ गया? लोग तो मेरा नाम सुनते ही डर जाते हैं।
किसी ने इतनी हिम्मत नहीं। वह पहले उस नौजवान लोगों के नारे सुने। लोग कह रहे थे रानी साहिबा डर गई, सुलेमान का मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए उसको महल के अंदर नहीं आने दिया। रानी बुज़दिल है, रानी बुज़दिल है, रानी बुज़दिल है। लोगों के मुंह से जब रानी के खिलाफ बातें सुनी तो सिपाही को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से रानी के महल में जा पहुंचा। रानी साहिबा दज हो गया। लोग बगावत पर उतर आए। आपका खौफ कम हो रहा है, लोग आपको बुज़दिल होने का ताना दे रहे हैं। यह बात सुनते ही रानी तो गुस्से से लाल हो गई। ये कैसे हो सकता है? किसमें इतनी जरूरत जो मेरा मुकाबला करें और मुझे बुज़दिल कहे? आज से पहले तो किसी की ऊंची आवाज मेरे कानों तक नहीं गई। आखिर कौन गुस्ताख हो सकता है? रानी साहिबाबा सुलेमान, जिसको आपने मिलने से मना किया। लोग ने समझा आप डर गई हैं और आपने इसीलिए उसे जाने दिया और खुद से मिलने नहीं दिया। अच्छा, वह सुलेमान जो अभी कुछ देर पहले आया था, आखिर वह है कौन और जो मुझसे मुकाबला करे? सिपाही रानी से कहने लगे, रानी साहिबा, वह पास ही के गांव का रहने वाला है। सुनने में आया है वह बहुत नेक और पक्का मुसलमान है और किसी से नहीं डरता। वह इस बार आपसे मुकाबला करने के लिए आपको लकारने आया था। ये जुनम करो। अच्छा, तो ये बात है, मैं हुक्म देती हूँ, जाओ तुम उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। मैं देखूं कि कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत कि मेरा मुकाबला करने आए। इसी दौरान सिपाही रानी का हुक्म मानकर सुलेमान को पकड़ने के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान सुलेमान जमात करा रहा था। मगरिब का वक्त था। सिपाही पहुंचे और उसके घर जाकर कहने लगे, ए बूढ़ी औरत, तेरा बेटा कहाँ है? अम्मा फातिमा कहने लगी, कौन हो तुम लोग? खैरियत तो है ना? हम रानी सुल्ताना के सिपाही हैं। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रानी के सामने आ खड़ा हुआ। उसे अभी तक रानी की ताकत का अंदाजा नहीं। अब देखना तुम अपने बेटे का हाल क्या होता है। आज तक रानी के सामने कोई नहीं आया। क्या तुमने अपने बेटे को मनाना किया? अम्मा फातिमा कहने लगी, तुम लोगों को यह बात याद रही कि मेरा बेटा सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। वह मस्जिद में जमात करवा रहा है। आप ही जाएगा, यहां पर इंतजार करो। अम्मा फातिमा बहादुर खातून थी। उसी दौरान सुलेमान भी वहां पर आ गया। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और वहां से ले गए। लोगों ने जब देखा कि सुलेमान गिरफ्तार हो चुका है तो उनके हौसले और पस्त हो चुके थे। उनके अंदर खौफ और बढ़ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सुलेमान की खातिर रानी के खिलाफ आवाज उठाई। रानी के खिलाफ आवाज। सुलेमान तो आज रानी के जुर्म का निशाना बन जाएगा। बाद में रानी वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। लोग घरों में जाकर छुप गए और अपने दरवाजे बंद कर दिए। सुलेमान को सिपाही रानी के सामने लेकर आए। रानी कहने लगी, अच्छा, तो तुम हो जो मेरा मुकाबला करने आए हो? मुझे रोकने आए हो? कौन हो तुम? सुलेमान कहने लगा। सुलेमान के हाथ पांव बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसी दौरान उस शेर का पिंजरा खोला गया जो भूख से दहाड़ रहा था। लोग डर गए। हाय अल्लाह, जो मंजर अब होने वाला है वह खुदा ना दिखाए। शेर भागता हुआ सुलेमान के पास आया और जैसे ही वह उसके करीब गया तो वह भूखा और खाने की नीयत से था, लेकिन करीब जाते ही वह उसे सूंघने लगा। कुछ देर के बाद वह उसे चाटने लग गया और उसके गिर्द चतर लगाने लगा। यह मंजिल देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उनके चेहरों के रंग उड़ गए कि हाय अल्लाह, यह क्या हो गया। रानी भी चिल्ला उठी। गुस्से के साथ सिपाहियों को कहने लगी, क्या यह शेर भूखा नहीं था? यह उसको खा क्यों नहीं रहा? रानी साहिबा 3 दिन से भूखा है, जंगल से पकड़कर लाए हैं और जंगली शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ते। हम खुद हैरान हैं, ये उसको क्यों नहीं खा रहे और कुछ भी नहीं कह रहे। ऐसा लग रहा था कि यह शेर उसने रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? रानी इसी दौरान हैरान थी और उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, लेकिन अम्मा फातिमा मुस्कुरा रही थी। वह समझ चुकी थी। अल्लाह की मदद आ पहुंची। शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान रानी ने हुक्म दिया, दूसरे शेर को लाया जाए, और वह शेर भी भूखा था। लोग अब फिर से डर गए कि एक शेर शायद वह उसके पास जाकर बैठ गया तो, लेकिन दूसरा शेर तो उसे नहीं छोड़ेगा। और यह रानी का वही शेर था जो हर इंसान को खा चुका था। वह आदी था। इंसान का गोश्त खाने का लोगों को पता था। यह शेर 1 मिनट नहीं लगाएगा गोश्त खाने में। जैसे ही उस शेर को छोड़ा गया तो वह जल्दी से सुलेमान के ऊपर गया और उसके ऊपर जाकर उसका मुंह चाटने लग गया। यह मंजिल देखकर रानी खुद हैरान रह गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? एक शेर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये शेर तो मेरा अपना था। ये कैसे इसको नहीं खा रहा?
वह शेर भी दूसरे शेर के अपना ईमान कमजोर कर चुके थे, अपने हौसले पस्त कर चुके थे। सुलेमान उनसे मुखातिब हुआ, कहने लगा, ऐ लोगों, ये जान लो कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो वह कभी शिकस्त नहीं खा सकता। तुम लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, रानी का खौफ पैदा हो चुका था, जिसने तुम्हें लोगों के हौस और ईमान को पस्त कर दिया। इसीलिए तुम लोग बुज़दिल हो चुके थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। अल्लाह का खौफ जिसके अंदर हो वह किसी से नहीं डरता और कोई चीज़ उस पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। रानी इस दौरान कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? इसी दौरान रानी के सिपाही और उसके मानने वाले सारे लोग कलमा पढ़ चुके थे। अपनी आंखों से अल्लाह की मदद का मौजा देखकर वह मुसलमान हो गए और एक साथ नारा लगाने लगे कि रानी को सजा दी जाए। रानी झूठी है, रानी झूठी है। रानी सुल्ताना उसी दौरान अपनी आंखों से अपनी शिकस्त होती देख रही थी। वह रो रही थी कि अब क्या होगा। रानी समझ चुकी थी, अब उसका वक्त आ चुका है। ये जुल्म उसने पूरी जिंदगी कि आज उसे उसका बदला मिलेगा। आखिरकार वह घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुलेमान के आगे घुटने टेक दिए, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का तरा करती हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं भूल चुकी थी, दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। खुद को बड़ी ताकतवर समझने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता है, वह मक्कार रानी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। अब उसका वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने सुलेमान को एक वसीला बनाकर भेजा। सुलेमान कहने लगा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे तुम्हें आज़ाद किया जाएगा? तुमने तो बहुत जुर्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके शौहर जा चुके हैं, जिनके बेटे जा चुके हैं। वह माएँ यह मंजर देखने आ चुकी हैं। वह रो रही है, तुमने उनके आंसुओं की कदर नहीं की, तो तुम कैसे सही सलामत जा सकती हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। ये तो वही लोग फैसला करेंगे जिनके साथ तुमने जुल्म किया कि तुम्हारा अंजाम क्या होना चाहिए। इसी दौरान सुलेमान कहने लगा, तुम लोग क्या कहते हो, उसको कौन सी सजा दी जाए? और वह सब कहने लगे, इसको इन शेरों के सामने डाला जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ ऐसे ही जुल्म किया। हम अपनी आंखों के साथ इसके टुकड़े 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 होते देखना चाहते हैं। इसी दौरान रानी मदद की भीख मान रही थी, लेकिन उसका जुल्म बहुत बढ़ चुका था। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को माफ नहीं करता। उसी शेर के सामने रानी को जब फेंका गया तो उन शेरों ने एक पलना लगाया और रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको नोच नोच कर खा गए। वहां देखने वाले लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। वह पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने उसके पूरे इलाके को नई जिंदगी बख्श दी। जुल्म उनसे दूर हो गया। जिसके दिल के अंदर ईमान हो और अल्लाह का खौफ हो, वह चाहे एक हो और उसके साथ ने मुकाबला करने वाले हजार ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर देता है। रानी का जो वजीर था वह कहने लगा, सुलेमान, तुम्हें हम सबकी आंखें खोल दी, न जाने हम भी इस सजा के हकदार हैं। वह कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग भी इस रानी के बुलान थे। उसके खौफ से तुम लोग भी यह भूल चुके थे। तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो? वजीर कहने लगा, हम आपको इस इलाके का बादशाह मुकर्रर करते हैं। आप इस इलाके में हुकूमत करने के काबिल हैं। क्या आप लोगों में से किसी को कोई एतराज तो नहीं? लो तो कहने लगे, हमें क्या तराज होगा? इसने तो हमारी जिंदगी में एक नई किरण डाली है, वह ईमान की किरण, अल्लाह के डर की किरण, जिसने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। हर कोई उसको दुआ दे रहा था सुलेमान को। अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, वह इस इलाके का बादशाह बन गया। अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही मौज से करता है जो देखने वालों की सोच से बालातर होते हैं और इस्लाम के मुखालिफ अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं और वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमानों का अगर यह जान ले कि वह क्या चीज़ है, अल्लाह तबारक ताला जो हर चीज़ पर कादिर है, उनके साथ है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमान की दौलत ने सुलेमान की दुनिया और आखिरता दोनों बदल दी। आजकल हम लोग बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ना जाने हमारा ईमान अभी कम हो चुका है। हक की खातिर अल्लाह के खौफ से हमें बुराई के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए। हमें अल्लाह का डर होना चाहिए, क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसके लिए ऐसे ही मौज होते हैं। मान के ईमान ने, उसके यकीन ने और उसके भरोसे ने, उसकी नेक दिली ने उस पूरे इलाके को रानी सुल्ताना के जुल्म से आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसको अल्लाह का डर था।
सुलेमान ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जुल्म खिलाफ खड़े होकर लोगों ने रास्ता दिखाया। यह अल्लाह की मदद का एक अजीम मुजाहरा था जिसने साबित कर दिया ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह खूबसूरत दास्तान अच्छी लगी होगी। प्यारे की मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। जज़ाकल्लाह।